ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 12 of the Kishkinda Kandam, which has 42 verses. Amazed to behold Sri Rama's arrow re-enter his quiver after piercing all the 7 sal trees and penetrating the bowels of the earth, and applauding Sri Rama, Sugriva implores him to make short work of Vali. Sending Sugriva to challenge Vali to a combat, Sri Rama sits hiding behind a tree. When a passage at arms begins with Vali, who would not brook a challenge, Sri Rama did not hit Vali with an arrow because the two brothers so closely resembled each other that it was difficult for him to distinguish one from the other. The result was that Sugriva lost heart and ultimately, taking to his heels, returned to Rishyamukh. Explaining to Sugriva the reason for his failure to hit Vali, Sri Rama reassures Sugriva and encourages him to seek an encounter with Vali again. Urged by Sri Rama, Lakshmana uproots a blossomed Gajapushpi creeper and ties it around the neck of Sugriva for identification. आज हम किष्किंधा कांड के द्वादश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 42 श्लोक हैं। श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन, श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर बाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना, वहां श्री राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजना। एतत् वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। Nay, hearing this well-worded submission of Sugriva, Sri Rama, who was invested with exceptional glory, took up his bow to inspire confidence in the former. सगृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् स रवैर्दिशः। दूसरों का मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। Taking up the dreadful bow and an arrow and aiming it at the sal trees pointed out by Sugriva, the celebrated Sri Rama, then bestower of honor on others, discharged it, filling the quarters with the twang of the bow. स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृतः वित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थं सप्तं भूमिं विवेशः। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींध कर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। Piercing all the 7 sal trees, though it was aimed at only one of them, as well as the plateau on which they stood, as also the 6 subterranean regions, the aforesaid arrow, which was shot by the mighty prince and was decked with gold, entered Patala, the 7th subterranean region. So the tradition goes. सायकस्तु मुहूर्तेन सालान् वित्त्वा महाजवः निष्पत्य च पुनः तूर्णं तमेव प्रविवेशः। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली वान पुनः वहां से निकलकर उनके तर्कस में ही प्रविष्ट हो गया। Having pierced the sal trees as well as the plateau and the bowels of the earth in the course of the less than an hour, forcing its way out, the arrow for its part, which was possessed of great velocity, quickly entered once more, they say, the same quiver from which it had emerged. तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्ष को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ।
Sugriva, the foremost of monkeys, was seized with great wonder to see with his own eyes those 7 sal trees thoroughly pierced by the impetuosity of Sri Rama's arrow. स मूर्ध्नान्यपतत् भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते ही समय उनके कंठहारदी भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। Supremely pleased, Sugriva, with joint palms, fell flat on the ground as a token of respect towards Sri Rama, the scion of the Raghus, with his head touching the ground and his ornaments all hanging loose in the process of bending low. इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्रविदुषां श्रेष्ठं शूरम् अवस्थितम्। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेताओं से श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। Nay, delighted with that feat of Sri Rama, he spoke as follows in the valiant Sri Rama, the foremost of those adept in the use of all types of missiles, who knew what was right and stood before him. सेन्द्रानपि सुरान् सर्वास्त्वं बाणैः पुरुषऋषभ समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो। पुरुषवर भगवान, आप तो अपने बाणों से समारंगन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हो, फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। You are able to kill with your arrows in an encounter all the gods, including even Indra, their ruler, O jewel among men, much more so, Bali, my lord. येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च धारिताः बाणेन एकेन काकुस्थ ताता ते को रणाग्रतः। ककुस्था, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बार में विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। Who can stand in the one of a battle before you, by whom 7 big sal trees, as well as the mountains on which the trees stood and the earth supporting it, have been pierced with a single arrow, O scion of Kukusta? अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदं त्वां समासाद्य महेंद्र वरुणोपमम्। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सहृदय के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। Now that I have duly met in the form of an ally, you who are a comparer of the mighty Indra, the ruler of the gods, and Varuna, the god of waters, my grief has totally disappeared and my joy is supreme today. तम अद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जहि काकुस्थ मया बद्धो अयम अंजलिः। ककुस्था कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरे प्रिय करने के लिए उस वाली जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। For my pleasure, O scion of Kukusta, pray which make short work of Bali, my enemy, in the guise of a brother, this very day. So have these palms been joined by me before you. ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृदय को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। Embracing Sugriva of pleasing aspect, Sri Rama, who was exceptionally wise, thereupon replied as follows to Sugriva, who was as dear as Lakshmana to him. अस्मात् गच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वम् अग्रतः गत्वा च आह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम्। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं, तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने
वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। Let us proceed, O Sugriva, to Kishkinda from this mountain. Depart you ahead without delay, and going there, challenge to a duel Vali who bears the name of a brother. सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैः आत्मानम् आवृत्य ह्यतिष्ठन् गहने वने। तदंतर वह सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर खड़े हो गए। Reaching with hasty steps Kishkinda, the capital of Vali, and hiding themselves behind trees, they all halted in a dense forest. सुग्रीवो अपि अनदत् घोरं वालिनो क्वाणकारणात् गाढं परिहितो वेगान् नादैः बिन्दन् निवाम्बरम्। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए इस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। Tightly girdled about his lions, even Sugriva roared frightfully by way of a challenge to Vali, rendering the air as it were by the shouts uttered with vehemence. तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करो अस्त तडादिव। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। Enraged to hear that roar of his younger brother and highly excited, Vali, who was possessed of extraordinary might, rushed forth as impetuously as the sun would slide from the edge of the western mountain behind which the sun is supposed to set. ततः सुतुमुलं युद्धं वाली सुग्रीवयोः अभूत्। गगने ग्रहयोर्घोरं बुधा अंगराकयोरिव। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। Then ensued a most tumultuous and terrible combat between Vali and Sugriva, resembling a clash between Mercury and Mars in the heavens. तलैः अशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतुः समरे अन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाचों और घूसों से का प्रहार करने लगे। Blinded with anger, the two brothers struck each other in the course of their encounter with their palms and soles, which felt like lightning, and fists which descended like the thunderbolt. ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत अन्योन्य सदृशौ वीरा उभौ देवाविवाश्विनौ। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। Bow in hand, Sri Rama thereupon keenly watched both the aforesaid heroes, who both closely resembled each other like the two Ashwini, the twin gods presiding over the star of Gemini. यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुम् अंतकरं शरम्। श्री रामचंद्र जी को यह पता ना चला कि इनमें कौन सुग्रीव है कौन वाली है, इसलिए उन्होंने अपना वह प्रांतकारी बांध छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। Since Sri Rama, Sian of the Raghu, could not make out Vali or Sugriva because of their close resemblances, he therefore could not make up his mind to discharge his deadly arrow, lest it should hit Sugriva and dispose him off. एतस्मिन् अंतरे भग्नः सुग्रीवः तेन वालिना अपश्यन् राघवं नातं वृषमूकं प्रदुद्रुवे। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वह अपने
रक्षक श्री रघुनाथ जी को ना देखकर ऋषि मुख पर्वत की ओर भागे। Discomforted by the aforesaid Vali and not perceiving Sri Rama as his protector, Sugriva in his meantime ran for his life towards Rishyamukh. क्लान्तो रुधिर सिक्ताङ्गः प्रहारैः जर्जरीकृतः वालिना विद्रुतः क्रोधात् प्रविवेश महावनम्। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोध पूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। Exhausted and battered with the blows of Vali, his whole body bathed in blood and chased in anger by Vali, he entered the large forest occupied by sage Matanga. तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शापभयात् ततः मुक्तो हि असि त्वम् इत्युक्त्वा स निवृत्तो महाबलः। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। Seeing him having penetrated into the forest and saying, "Indeed, you are spared," the aforesaid Vali, even though possessed of extraordinary might, desisted from the pursuit due to fear of the curse. राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता तदेव वनम् अगच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान थे। Along with his younger brother Lakshmana as well as Hanuman, Sri Rama too returned to the same forest where the monkey chief Sugriva was. तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सह लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनम् उवाच इदं वसुधाम् अवलोकयन्। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वह पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले। Discerning Sri Rama returned with Lakshmana, Sugriva piteously spoke to him as follows, looking at the ground full of shame at his discomfort as he was. आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं। तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालिनं न निहन्मीति ततो न अहमितो व्रजे। रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे ये कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि वाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। Having demonstrated your prowess and saying to me, "Challenge Vali to a duel," what have you done now by getting me beaten up by the enemy? In all faith, it should have been pointed out by you at that very moment that I am not going to kill Vali. Then I would not have moved from this place. तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत्। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे तब श्री राम ने फिर उनसे बोले। To that high-minded Sugriva who was piteously speaking as aforesaid in doleful accents, Sri Rama replied again. सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधस्य व्यपनीयतां कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसर्जितः। तात सुग्रीव मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। Sugriva, dear brother, let anger be banished from your mind, and the reason why this deadly arrow was not discharged by me, please hear it. अलङ्कारेण वेशेन प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्तः परस्परम्। सुग्रीव वेशभूषा कद और चाल ढाल में तुम और वाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। You, O Sugriva, and Vali resemble each other in personal embellishments, costumes, stature, and gait too. स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वा
न उपलक्ष्ये। कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। I did not perceive any distinction between you two in voice as well as in splendor, in look and in prowess as well as in speech. ततोऽहं रूप सादृश्यात् मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिबर्हणम्। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान ना सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक वान नहीं छोड़ा। जीवितान्तकरं घोरं सादृश्यात् तु विशङ्कितः मूलघातो न नौष्याद् हि द्वयोरिति कृतो मया। मेरा वह भयंकर वान शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस वान को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। Puzzled as I was by the likeness of your features, O jewel among the monkeys, I therefore did not let fly the deadly and terrible arrow, possessed of great velocity and capable of destroying the enemy. Seized as I was with apprehension due to your close resemblance, lest the very root of us both should be destroyed by me by killing you unwittingly, this omission was deliberately committed by me. त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानात् लाघवात् मया मौढ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात् कपीश्वर। वीर वानर राज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे वान से तुम ही मारे जाते तो मेरी बलोचित चपलता और मूर्ता ही सिद्ध होती। In the event of you being killed by me through ignorance of frivolity, my stupidity and puerility would have been surely exposed, O gallant ruler of monkeys. दत्त भयवधो नाम पातकं महदद्भुतम् अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वने अस्मिन् शरणं भवान् तस्मात् युध्यस्व भूयस्त्वं मा शंकीश्च वानर। जिसको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है, यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है, इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानर राज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध आरंभ करो। Killing one to whom protection has been vouchsafed is precisely a great and astounding sin. Moreover, myself and Lakshmana too, as well as Sita of excellent complexion, are all dependent on you. You are our refuge in this forest. Therefore, engage you in a combat with Vali once more. Pray, oh, do not fail a prey to misgiving, O monkey chief. एतन् मुहूर्ते तु मया पश्य वालिनम् आहवे निरस्तं इषुना एकेन चेष्टमानं महीतले। तुम इसी मुहूर्त में वाली को मेरे एक ही वान का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। Within this hour, behold, Vali struck down by me in the course of the very combat with you with a single arrow and writing on the ground. अभिज्ञानं कुरुष्व त्वम् आत्मनो वानरेश्वर येन त्वाम् अभिज्ञानीयां द्वन्द्वयुद्धम् उपागतम्। वानेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। Wear some distinguishing mark on your person, O Lord of monkeys, by means of which I might recognize you when actually come to grips with Vali. गजपुष्पीमिमां पुल्लाम् उत्पाट्य शुभलक्षणां कुरु लक्ष्मण कंठे अस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, उसे उखाड़ कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। Turning to Lakshmana, he continued, uprooting this creeper named Gajapushpi, which is in blossom and is propitious in character, fasten it, O Lakshmana, around the neck of the high-souled Sugriva. ततो गिरितटे जाताम् उत्पाट्य कुसुमायुधाम्
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कंठे व्यसर्जयत्। ये आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी हुई वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दी। Plucking Gajapushpi creeper adorned with flowers and growing on the side of the mountain, Lakshmana then fastened it on the neck of Sugriva. सतया शुशुभे श्रीमान् लतया कंठसक्तया मालयेव बालाकानां ससंध्य इव तोयदः। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वंग पक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। With that creeper fastened to his neck, the glorious Sugriva shone like a cloud, accompanied by twilight and encircled by a string of herons. विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्य समाहितः जगाम सह रामेण किष्किंधां पुनरापसः। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। Shining brightly with his body and reassured by Sri Rama's words, Sugriva left with Sri Rama and reached Kishkinda once more. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकाण्डे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 12 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम परतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।